ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 61 पर। अध्याय का शीर्षक है गीता नो सार, यानी गीता का सार। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये बच्चे बहुत धीरे अनाउंसमेंट लिख कर देंगे। हरे कृष्णा। जो छोटे बच्चे हैं तो उनको माता जी लोग पीछे बैठ सकते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब ना करें। तो उन लोगों को थोड़ा पीछे जाके बैठ सकते हैं, डिस्टर्ब ना हो जाता है। तो कोई माता जी भी पीछे जा सकते हैं, तो आगे वाले को डिस्टर्ब ना हो जाता है। माता श्लोक कोई माता जी पास है? तानि सर्वाणि संयम्य शब्दार्थ। तानि तेन्द्रियों ने, सर्वाणी समग्र, संयम्य वशमा राखीने, युक्त जो जोड़ायला, आसीत स्थित होवू जोइए, मत्परः मारा संबंध में, वशे पूरे पूरी वशमा, ही खरेखर, यस्य जेनी, इंद्रियाणी इंद्रियो, तस्य तेनी, प्रज्ञा चेतना, प्रतिष्ठिता स्थिर। अनुवाद और तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदा भाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापकाचार्य। जे मनुष्य समग्र इंद्रियों ने संपूर्णपणे नियंत्रण में राखीने इंद्रिय निग्रह करे छे अने तेनी चेतना मारामां स्थिर रहे छे, स्थिर करे छे, ते स्थिर बुद्धिवाळो कहेवाय छे। भावार्थ। आ श्लोक में स्पष्टपणे दर्शाव्યું છે કે યોગ સિદ્ધિની ઉચ્ચતમ
અનુભૂતિ કૃષ્ણ ભાવનામૃત જ છે. જ્યાં સુધી મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થતો નથી ત્યાં સુધી ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવાનું શક્ય નથી. આ પહેલાં ઉલ્લેખ થયો છે તેમ દુર્વાસા મુનિએ મહારાજ અંબરીશ સાથે ઝઘડો ઊભો કર્યો હતો, કારણ કે મુનિએ અહંકારવશ થઈને મહારાજ અંબરીશ ઉપર અનાવશ્યક રીતે ક્રોધ કર્યો હતો અને તેથી પોતાની વિવેક બુદ્ધિને અંકુશમાં રાખી શક્યા ન હતા. બીજી બાજુએ રાજા મુનિ જેવા શક્તિશાળી યોગી ન હતા, પણ ભગવાનના ભક્ત હતા. તેથી મુનિના બધા અન્યાય સહન કર્યા અને અંતે વિજયી થયા. રાજા નિમ્નલિખિત ગુણોના પ્રભાવે પોતાની ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શક્યા હતા, જે વિશે શ્રીમદ ભાગવતમ 9:4-18-20 ઉલ્લેખ થયો છે. સવૈ મનઃ કૃષ્ણ પદારવિંદયોર્વચાંસી વૈકુંઠ ગુણાનુવર્ણને કરૌ હરેર મંદિરમાર્જનાદિષુ શ્રુતિમ ચકારાચ્યુત સત્કથોદયે મુકુંદલિંગાલય દર્શને દૃશૌ તદ્ભૃત્ય ગાત્ર સ્પર્શંગ સંગમમ ગ્રાણમ ચ તત્પાદ સરોજ સૌરભે શ્રીમત્તુલસ્યા રસનામ તદર્પિતે પાદૌ હરે ક્ષેત્ર પદાનુસર્પણે શિરો હૃષિકેશ પદાભિવંદને કામં ચ દાસ્યેન તુ કામકામ્યયા યથોત્તમ શ્લોક જનાશ્રયારતિઃ. અનુવાદ: રાજા અંબરીશે પોતાના મનને ભગવાન કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં સ્થિર કર્યું. વાણીને ભગવાનના ધામનું વર્ણન કરવામાં, કાન ભગવાનની લીલાનું શ્રવણ કરવામાં, હાથ ભગવાનના મંદિરને સ્વચ્છ કરવામાં, આંખો ભગવાનના સ્વરૂપનું દર્શન કરવામાં, શરીરને ભક્તના દેહનો સ્પર્શ કરવામાં, નાક ભગવાનના ચરણ કમળમાં ચઢાવેલા ફૂલોની સુગંધ લેવામાં, જીભ તેમને સમર્પિત તુલસી પત્રનું આસ્વાદન કરવામાં, પગને જ્યાં જ્યાં ભગવાનના મંદિર હોય તે સ્થાનોની યાત્રા કરવામાં, મસ્તક ભગવાનને નમસ્કાર કરવામાં અને પોતાની અભિલાષાઓને ભગવાનની અભિલાષાઓને પૂર્ણ કરવામાં પરોવી દીધી. અને આ સમગ્ર ગુણોને કારણે તેઓ ભગવાનના મતપરા ભક્ત બનવા માટે યોગ્ય પાત્ર बनी गया. आ संबंध में ये तात्पर्य अनुवाद इसका समाप्त हुआ श्लोक का. आ संबंध में मत पर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है. मनुष्य मत पर केवी रीते थई शके तेनु वर्णन महाराज अंबरीशना जीवन में दर्शाव्यु है. मत पर परंपराना विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण कहे छे, मत भक्ति प्रभावेन सर्वेन्द्रिय विजयपूर्विका स्वात्मदृष्टि सुलभेति भावः. इंद्रियों ने मात्र कृष्णनी भक्तिमय सेवा द्वारा ज पूर्णपणे वशમાં રાખી શકાય છે. વળી કેટલીક વખત અગ્નિનું ઉદાહરણ પણ આપવામાં આવે છે. જેવી રીતે શું છે, ભડકે જળતો અગ્નિ ઓરકામાંની બધી વસ્તુઓની વાળી નાખે છે, તેવી જ રીતે યોગીના હૃદયમાં સ્થિત ભગવાન વિષ્ણુ સર્વ પ્રકારની અશુદ્ધિઓને બાળી નાખે છે. યોગ સૂત્ર પણ વિષ્ણુના ધ્યાનનો નિર્દેશ કરે છે, શૂન્યના ધ્યાનનો નહીં. કહેવાતા યોગીઓ
કે જેઓ વિષ્ણુ રૂપ ન હોય તેવા કશાકનું ધ્યાન ધરે છે તેઓ માત્ર ઝાંઝવાના જબની શોધમાં પોતાના સમયને વ્યર્થ ગુમાવે છે. આપને કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થવું જોઈએ. પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પ્રત્યે એકનિષ્ઠ થવું જોઈએ. સાચા યોગનો એ જ ઉદ્દેશ્ય છે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रितपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशः यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. ये जो श्लोकों की श्रृंखला चल रही है इसमें स्थित प्रज्ञ के विषय में चर्चा चल रही है. क्योंकि कुछ श्लोक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग बताते हुए क्रमशः एक साधक धीरे धीरे समाधि की अवस्था में पहुंचता है ऐसा बताया था. समाधि अवस्था अर्थात जिसमें व्यक्ति या साधक चित्त को पूरी तरह से भगवान में एकाग्र कर पाता है, जिसके कारण इस भौतिक जगत का जो कल्मश है वो उसे कदापि प्रभावित नहीं करता है. ये योग की सर्वोच्च स्थिति है समाधि. तो जो समाधि में स्थित होता है उसको स्थित प्रज्ञ भी कहते हैं. प्रज्ञ अर्थात चेतना बुद्धि, स्थित अर्थात जो अविचलित रूप से रहती हो. इसलिए स्थित प्रज्ञ अर्थात वो व्यक्ति जिसकी चेतना अविचलित रूप से भगवान में निष्ठ रहती हो उसको समाधि अवस्था कहते हैं. तो फिर अर्जुन ने प्रश्न किया था कि समाधि जो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, जो इस प्रकार से स्थित प्रज्ञ है जो समाधि में स्थित है उसके लक्षण क्या होते हैं. तो भगवान उस प्रश्न के उत्तर में इन लक्षणों को बता रहे हैं. उसी के संदर्भ में ये आज का श्लोक भी आता है जिसमें वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के विशिष्ट लक्षण का गुणगान यहाँ पर भगवान करते हैं. तो सर्वप्रथम तो ये जो शब्द है स्थित प्रज्ञ, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, इसको समझना जरूरी है. श्रीमद् भागवतम में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें कहा गया है पराभावस्तावदवोद जाता यावन् न जिज्ञासत आत्मतत्त्वं यावत् क्रियास्तावत् इदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीर बंधः. इस श्लोक का अर्थ ये है अबोध जाता
जात मतलब जन्म, अबोध अर्थात मूर्ख, ज्ञान रहित। जब हमारा जन्म होता है तो हम सभी लोग अबोध होते हैं, हमें कोई जानकारी नहीं होती है जो मनुष्य को होनी चाहिए, इसलिए अबोध जाता कहा गया। लेकिन इस श्लोक में कहा गया है जो व्यक्ति पूरे जीवन भर मनुष्य जीवन का उपयोग आत्म तत्व को समझने में नहीं करता, स्वयं को पहचानने में नहीं करता, वो जन्म से तो मूर्ख था ही, लेकिन मरने के समय पर भी यदि कोई इसी प्रकार से आत्म तत्व को बिना जाने मर जाए तो उसका जीवन विफल हो गया, व्यर्थ उसका जीवन चला गया। क्योंकि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य आत्मा को समझना है, स्वयं को समझना है। क्यों ऐसा कहा गया है? जीवन के लक्ष्य को आत्मा को समझना क्यों कहा गया है? हम सभी ये अनुभव करते हैं, हर व्यक्ति सुख की खोज में है, आनंद की खोज में है। ये तथ्य जो है वो इतना व्यापक है, हर व्यक्ति के स्वयं के जीवन में ये उसका केंद्रीय भाग है। तो इसके लिए कोई विशेष तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है। सर्वविदित है ये बात कि हम सभी सुख की खोज में हैं, नित्य सुख की खोज में, सुख भी नित्य सुख। अज्ञानतावश सारा संसार, सभी लोग ये सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? भौतिक जगत में ढूंढ रहे हैं, भौतिक पदार्थों में ढूंढ रहे हैं। पैसा कमा करके पैसे से अलग अलग भौतिक जगत की चीज़ों को अपने घर में बसाने में ढूंढ रहे हैं, समाज के अंदर बहुत अच्छी प्रतिष्ठा में ढूंढ रहे हैं। इंद्रियों के सुख, मन के सुख, बुद्धि के सुख। इंद्रियों के सुख अर्थात जैसे जीवा है, बहुत अलग अलग सुंदर सुंदर स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन खाना, कानों से कुछ मधुर भौतिक गान सुनना, और अलग अलग जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, उसी प्रकार स्त्री पुरुष आकर्षण, उससे मिलने वाला सुख। इस प्रकार से ये सब अलग अलग प्रकार के इंद्रिय सुख हैं। उसके उपरांत मानसिक सुख हैं, जिसमें प्रतिष्ठा, समाज में एक बड़ा ऊंचा स्थान, सब सम्मान करें, कोई हमारा निरादर ना करे। ये सब मन को संतुष्ट करने वाले मन के सुख हैं। और इस प्रकार से फिर बौद्धिक सुख भी हैं, संसार कैसे चल रहा है, संसार के नियमों को जान लेना और फिर उसके अनुसार चीज़ों को परिवर्तित करना। वैज्ञानिक मुख्य रूप से ये बौद्धिक सुख भोगने के लिए प्रयासरत हैं। तो हम कहाँ सुख ढूंढ रहे हैं? हम भौतिक पदार्थों में सुख ढूंढ रहे हैं। और परिणाम उसका क्या हो रहा है? क्या परिणाम होता है? अगर आप अपने जीवन में देखें और इतिहास में देखें, अपने माता पिता, अपने दादा या सामान्य जनों को देखें जो जन्म लिए, अत्यंत प्रयास किए अलग अलग भौतिक सुखों को प्राप्त करने का, लेकिन क्या वो वास्तव में जो सुख उनको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सके, जिसकी हम सबको तलाश है, क्या उनको प्राप्त हो पाया? क्या भौतिक चीज़ें कभी हमें संतुष्ट करती हैं? तात्कालिक सुख तो मिलता है, जैसे छोटे बालक होते हैं तो उनको खिलौने खेलने में बहुत सुख मिलता है, लेकिन वो सुख पूरा जीवन नहीं चलता है। पूरा जीवन हम खिलौने से नहीं खेल सकते हैं। उसके बाद फिर युवावस्था प्राप्त होती है, तो उसमें अलग अलग
पढ़ाई करना, एक बड़ा आदमी बनना, बड़ी जॉब, कहीं पैसा कमाने के लिए बड़ा पैसा मिल जाना, ये सब। फिर पारिवारिक सुख, विवाह करते हैं लोग, तो पारिवारिक सुख, संतान का सुख, मित्रों का सुख, घर, अपना घर, ऐसे ऐसे चीज़ों में हम सुख ढूंढते हैं। फिर उसके बाद जब उससे भी ऊब जाते हैं तो फिर कुछ सामाजिक सेवा, समाज कल्याण, इस प्रकार की चीज़ों में हम सुख ढूंढते हैं। इस प्रकार से ये हमारे सुख की प्रयास बदलते रहते हैं। क्यों बदलते रहते हैं? क्योंकि ये सब जो भौतिक चीज़ें हैं ये हमें पूर्ण संतुष्टि प्रदान नहीं करती हैं, और साथ साथ इन सब सुखों के साथ दुख निहित है। थोड़ा सा सुख मिलता है, चपल सुख, बहुत थोड़ा सा सुख मिलता है, लेकिन उन चीज़ों को प्राप्त करने में बहुत कष्ट हमें लेना पड़ता है। और ये जो भी भौतिक चीज़ें हैं वो तो क्योंकि अनित्य होती हैं, थोड़े समय रहती हैं फिर चली जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो इसलिए जब चली जाती हैं तो जितना सुख मिलता है उससे ज़्यादा दुख दे करके जाती हैं जब चली जाती हैं। तो इस तरह से अंततः लोगों का जीवन सामान्यतः से, यदि आप थोड़ा सा भी गहराई से अध्ययन करें अपना जीवन, अन्यों का जीवन, तो ये बस एक ऐसी लालसा है, एक आशा है, दुराशा जिसको शास्त्रों में कहा गया है, जो ऐसी आशा जो कभी पूरी नहीं हुई किसी की, ऐसी आशा है। भौतिक चीज़ों को प्राप्त करके सुखी होने की आशा दुराशा है, क्योंकि उससे आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है ना, पूर्ण रूप से, सही प्रकार से। तो इसीलिए ये जो विचारवान लोग हैं उन्हें विचार करना चाहिए कि ये जो हम सुख भौतिक जगत में ढूंढ रहे हैं, जिससे हम देख रहे हैं कि कोई सुखी नहीं है, तो फिर वास्तव में सुख कहाँ है? तो इसलिए शास्त्रों में भगवान हमें बताते हैं, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, जो बाह्य चीज़ों में अनासक्त है, दृष्टि आत्मनियत सुखम, जो अपने अंदर सुख ढूंढ रहा है, अपने अंदर सुख ढूंढ रहा है, अर्थात हमारे सारे दुखों का मूल कारण है अपनी पहचान को गलत समझ लेना। ये हमारे सारे दुखों का कारण, क्योंकि वास्तव में हमारी जो वास्तविक पहचान है आत्मा, यदि हम उसको समझ लें कि हम आत्मा हैं, और आत्मा के अनुसार आत्मा की अपनी स्वाभाविक स्थिति में यदि हम स्थित हों, तो आत्मा का स्वभाव है नित्य भगवान की सेवा में सुखी रहना, उसमें कोई दुख का कारण ही नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा को, जो हम हैं, उसके गुणों को बताया है सच्चिद आनंद। 3 शब्द यहाँ पर उपयोग हुए हैं, सत, चित और आनंद। ये है हमारी वास्तविकता। हम सबकी वास्तविकता यही है, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है। सत मतलब जो नित्य है, चित मतलब जो ज्ञानवान है, और आनंद मतलब जो हमेशा से आनंदमय है। लेकिन वर्तमान समय में हम सब क्या अनुभव करते हैं? हम जन्म मरण अनुभव करते हैं, जो अनित्यता अनुभव करते हैं, है ना। सत अनुभव नहीं करते हैं। सत मतलब नित्यता, हमेशा से एक जैसा रहना, ऐसा हम अनुभव नहीं करते हैं, है ना। बूढ़े होते रहते हैं, फिर एक दिन मर जाएंगे, खत्म कहानी। तो अनित्यता अनुभव करते हैं, जबकि हमारा वास्तविक स्वभाव है ये मरने का अनुभव हमें नहीं होना चाहिए। मरने का अनुभव हमें नहीं होना चाहिए। आत्मा का ही मरण नहीं होता है, इसलिए आत्मा को मरने का अनुभव नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी होता है ना। उसी प्रकार से अचित, हम लोग हमेशा से अज्ञानता में रहते हैं। ये क्या होगा, ये क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अज्ञानता में रहते हैं, और अज्ञानता से डर बनता है। तो ये दूसरा जो हमारे जीवन का जो आत्मा का जो स्वभाव है वो भी अभी प्रकट नहीं है, वो भी अभी अनुभव नहीं कर रहे हैं हम लोग। फिर निरानंदमय है हम लोग, आनंदमय नहीं है, निरानंदमय है। हताश, निराश, दुखी ना। जीवन में कभी कभी एक क्षण आते हैं जो बहुत सुखी होते हैं, लेकिन वो कितना समय टिकते हैं, क्षण भंगुर। तो इस प्रकार से ये हमें वर्तमान हमारी स्थिति है। इसलिए भागवत में एक और बहुत अच्छा श्लोक है,
ये सबको बताया है। भयम द्वितीयाभिनिवेशित ईषदपेतस्य विपर्यय स्मृति कि भयम भय, शोक भय, ये है इस भौतिक जगत का बड़ा प्रोमिनेंट, बहुत ही बड़ा लक्षण इस भौतिक जगत का है भय शोक। सभी लोग ग्रस्त हैं इससे, भय शोक से। जन्म होते ही हम रोते रोते आते हैं, है ना, रोते मतलब कुछ कष्ट होता है, बड़ा अजीब सा लगता है, भय लगता है, पता नहीं कहाँ गए, और फिर शोकग्रस्त। ऐसे पूरा जीवन में आप देखिए हमारा ज़्यादातर समय भय और शोक में ही बीतता है, और इसीलिए हम बहुत भरसक प्रयास कर रहे हैं उसका निवारण करने का। जितना ही भौतिक जगत के अंदर हमारे प्रयास हैं वो सब ये भय और शोक निराशा को कैसे न कैसे कुछ दबा दिया जाए, यही प्रयास है। ख़त्म तो नहीं होने वाला, ख़त्म तो होता ही नहीं है, लेकिन बस उसे थोड़ा ऊपर से ढक देने के प्रयास हैं कि थोड़ा वो एकदम से आंखों के सामने नहीं आए, है ना। इसलिए मनोरंजन करते हैं हम लोग, मन का रंजन। उदास है मन, जाए कहीं पिक्चर देखी, थोड़ा गीत गाना, चित्रहार, अलग अलग चीज़ें, थोड़ा मन जो है वो उसको भुला देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये जो हमारे इस भौतिक जगत के सारे प्रयास हैं, ये दिखाता है कि कैसे हमारी स्थिति जो है वो बड़ी शोकग्रस्त है और बहुत ही दुखों से, चिंताओं से ग्रस्त है। चिंताम अपरिमेयाम ते प्रलयांतम उपासिताः, ये भी भगवान बताते हैं भगवद गीता में, आप आगे पढ़ेंगे 16वें अध्याय में। चिंताम अपरिमेयाम, जिनकी कोई सीमा नहीं है, इतनी चिंताएं लोगों को रहती हैं। तो ये भौतिक जगत के बड़े विशिष्ट लक्षण हैं, हर व्यक्ति इससे ग्रस्त है, चाहे वो अगर अभी भी किसी का मोबाइल फोन थोड़ा साइलेंट कर लीजिए प्लीज। बड़ा मोबाइल फोन साइलेंट करना काफी लोग बता नहीं और तो बंद वगैरह कुछ लो क्या करवाओ परिवार बनाओ कम की होगी साइलेंट करना। तो चाहे रिलायंस के मालिक हों, चाहे झुग्गी झोपड़ी वाला हो, सब लोग इस प्रकार से चिंताओं से ग्रस्त हैं। चिंता अपरिमेयाम थे। तो शास्त्रों में, भागवत में बताया उसका कारण क्या है। क्या बताया, भयम द्वितीय अभिनिवेशत स्यात्। ये सारे भय शोक का कारण क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। हम उसी से तो निवारण अपना, उसी से तो निकलना चाहते हैं सारा संसार। हम आज मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं, आशा है कि मार्स पे जाकर के शोक भय नहीं होगा, ऐसी आशा है, तभी तो वहाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। सारा प्रयास तो इसीलिए है पूरे संसार का। लेकिन इतना सारा प्रयास करने पर भोग, ये शोक और कम हो रहा है, कम तो होता दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टरों की दुकानें तो बढ़ती जा रही हैं, हॉस्पिटल की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर लोग शोक और मोह और सब समस्याओं से मुक्त हो रहे हैं प्रगति के कारण, तो फिर डॉक्टरों की संख्या क्यों बढ़ रही है। और विशेष रूप से मानसिक विशेषज्ञों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो लोगों में मेंटल डिसऑर्डर्स तो बहुत बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, सामान्य विषय। आज बच्चे को भी पूछेंगे स्ट्रेस मतलब ही पता होगा कि खुद भी बोल रहे हैं इतनी सामान्य चीज़ हो गई है स्ट्रेस। तो इतने सारे प्रयास करने पर भी उसका निवारण नहीं हो रहा है। तो प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर यहाँ भागवतम में दिया है। उसका कारण है अपनी गलत पहचान। देखिए कितना सरल उसका कारण बताया है, बहुत छोटे शब्दों में बताया है, बहुत सरल है, लेकिन ये बहुत गहरा है। इस पर चिंतन करने की जरूरत है। क्या कारण बताया है, द्वितीय अभिविनेशतः, हम जो नहीं हैं वो अपनी पहचान जो हम नहीं है उसमें बना लेना। वास्तव में हम हैं आत्मा, लेकिन ये शरीर में अपनी पहचान बना लेना। मैं शरीर हूँ, मैं इस जगत का भाग हूँ, मैं भौतिक हूँ,
और इसलिए भौतिक चीज़ें मुझे चाहिए, ये मेरी अपनी आवश्यकता है, भौतिक चीज़ें, क्योंकि मैं भौतिक हूँ। जबकि आत्मा क्या है? आत्मा भौतिक है क्या? आत्मा भौतिक पदार्थों का बना है क्या? नहीं। सबसे पहला लेसन भगवद गीता का यही है, ये सब पढ़ा हमने पहले, है ना। सबसे पहला लेसन यही है, देहिनो नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। देह और देही, ये दो शब्द भगवान बाबर इसका उपयोग किए हैं। देह शरीर और देही, जो इस शरीर में बैठा है, जो इस शरीर का के अंदर गिरफ्त है या उस शरीर से इस जगत के अंदर चल रहा है, फिर रहा है, देही। लेकिन देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, क्या कहा गया है? जो देही है वो नित्य है, जबकि देह नित्य है क्या? अनित्य है। अवध्यो, इसको कभी मारा नहीं आता, लेकिन देह हमेशा से खत्म होगा, मरेगा। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूतो भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शिक्षा है, इसे कहते हैं शिक्षा। एक श्लोक के अंदर हम कौन हैं उसकी पूरी व्याख्या बता दी। न जायते म्रियते वा कदाचिन, जिसका न कभी जन्म होता है, जिसका न कभी मरण होता है, जो ऐसा नहीं था कि कभी नहीं था या कभी नहीं होगा, नित्य है। हाँ, तो ये आत्मा जो हम हैं उसका न जन्म होता है न मरण होता है, क्योंकि वो भौतिक नहीं है। जो भी चीज़ भौतिक है उसका जन्म होता है, उसका मरण होता है। जो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, उसका कभी जन्म मरण नहीं होता है। तो हम वो हैं आध्यात्मिक, आत्मा आध्यात्मिक। तो फिर क्यों हमें मरने का अनुभव होता है? क्योंकि हम अपनी पहचान भूल गए हैं। हम सोच रहे हैं हम शरीर हैं, इसलिए हमें डर लगता है मरने से, इसलिए हमें मरने का भय सताता है और हम मरने का अनुभव करते हैं, बुढ़ापे का अनुभव करते हैं। ये सारी जगत की जो चिंताएं हैं भौतिक शरीर के कारण ही हैं, और हमने अपने को भौतिक शरीर मान लिया है, इसलिए वो सारी चिंताएं, वो सारे कष्ट हमें हमारे कष्ट बन जाते हैं। तो ये इतने सरल शब्दों में सारे संसार के दुखों के कारणों का वर्णन हो गया, बहुत छोटे से शब्दों में। भयम द्वितीय विनिवेशित स्यात्, हमारे सारे कष्टों का मूल कारण है अपने को भूल जाना। इसीलिए भागवतम के श्लोक में कहा, पराभावस्तावत् अबोध जाता यावत् न जिज्ञासत आत्म तत्वम। जब तक हम अपने को, हम कौन है, हम नहीं पहचानेंगे, तब तक हमारा जीवन, मनुष्य जीवन व्यर्थ है। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि हम अपने को पहचानें। इसीलिए ये जो चर्चा चल रही है, स्थित प्रज्ञ अर्थात कौन? जो अपना, जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। आत्म साक्षात्कार, जिसने साक्षात, साक्षात मतलब स अक्षर, देख लिया है, पूरी तरह से अच्छे से जान लिया है, अनुभव कर लिया है, उसको बोलते हैं साक्षात। आत्म साक्षात्कार, आत्म अपनी वास्तविकता को जिसने भली भांति समझ लिया है, पूरी तरह से अनुभव कर लिया है, जो उसमें पूरी तरह से स्थित हो चुका है, उसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति या स्थित प्रज्ञ, या जो समाधिस्थ, जो समाधि में है, ये कहा। तो अभी आगे चलते हैं, ये हुआ स्थित प्रज्ञ, इसे कहते हैं। तो आज के श्लोक में कहा कि इससे, आज का श्लोक और इससे पहले का श्लोक था, यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मना। तो बताया कि ये स्थित प्रज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? इंद्रियां वश में होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये ABCD है, इंद्रियां वश में होनी चाहिए। जिसकी इंद्रियां, जो इंद्रियों के वश में है, जो इंद्रियों का गुलाम है, वो व्यक्ति कभी आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। वो पशु के समान है। ये पशुओं का लक्षण है।
जब ब्रह्मा जी ने अलग अलग शरीर बनाए, भागवतम में आप पढ़ेंगे 3रे स्कंद में, तो उन्होंने पेड़ पौधे बनाए, उसके उपरांत उन्होंने ये सारे पशु पक्षी बनाए, और उसके उपरांत उन्होंने मनुष्य बनाए। तो पशु पक्षी जब बनाए तो वहाँ पर भागवतम में वर्णन है कि पशु पक्षी उनका मुख्य लक्षण क्या है। तो वहाँ बताया उनका मुख्य लक्षण है जिनकी चेतना हमेशा आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसमें ही जिनकी चेतना रहती है, जो भविष्य का नहीं सोच सकते हैं, उनको जानवर कहते हैं। ये जानवरों की परिभाषा है। तो मनुष्यों में और पशु में इसलिए यही मुख्य पार्थक्य है कि मनुष्य जो है वो इतना विवेकशील होता है कि वो ये समझ सके कि आखिर मैं एक दिन मरने वाला हूँ, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। जानवर ये विचार कभी नहीं कर सकता है। जानवर बस ये विचार कर सकता है खाना कैसे मिलेगा, उसमें बढ़िया विचार कर सकता है, वो सब विचार कर लेते हैं। वो ऐसा नहीं कि आज अगर आदमी ने जो है वो ये सब औद्योगिकरण कर लिया है ना, आज हमें अगर मॉल से खाना मिल रहा है, पैक्ड फूड, पैकेज्ड फूड, पैकेज्ड वाटर, तो हम सोचें कि हम बड़े प्रगतिशील हो गए हैं। जानवर हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं अपनी आहार चीज़ों को प्राप्त करने में। लेकिन मुख्य जो अंतर है मनुष्यों में और पशु में वो यही है कि मनुष्य जो है वो ये आत्म तत्व को समझ सकता है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा, इसको समझ सकता है। इसीलिए ये जो श्लोक है उसमें कहा है कि मनुष्य जीवन जिसमें ये आत्म साक्षात्कार नहीं किया था वो करते। तो हम बात कर रहे थे कि इंद्रिय संयमन, तो इंद्रिय संयमन जरूरी है यदि आत्म साक्षात्कार करना है। जिसके इंद्रियां उसके वश में नहीं है वो पशु है, पशु का लक्षण होता है, उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं होती हैं। तो आजकल आप स्थिति देखिए समाज की क्या हो गई है, मनुष्य समाज की। आज के मनुष्य समाज में इंद्रिय संयमन करना चाहिए ये विचार भी खत्म हो गया है। एक तो है कि इंद्रिय संयमन करने का प्रयास कर रहे, नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, इंद्रिय संयमन क्यों करना है। आजकल लोग गर्व अनुभव करते हैं यदि वो अपने, कोई व्यक्ति इंद्रियों का बड़ा गुलाम होता है तो और कितना बड़ा, अगर कोई नग्न अवस्था में जाता है, शरीर का प्रदर्शन करता है, तो उसे आज हीरो हीरोइन माना जाता है। फिर वो इलेक्शन में जीत के पॉलिटिशियन बन जाते हैं, हमारे मिनिस्टर ही बन जाते हैं। तो ये वर्तमान समय है जिसमें जानवर को, जो जितना बड़ा जानवर, अगर मनुष्य बड़ा जानवर जैसा काम करता है उसको बहुत उसको ट्रॉफी दी जाती है। वेरी गुड। इसलिए शोविडवर होष्ट खरई संस्तुतः पुरुषा पशु, भागवतम में देखिए सारा चीज़ बहुत अच्छे से समझाई है। इसलिए भागवतम हर एक के पास होना ही चाहिए। करेक्ट। आज हमारा ये मैं जो आपको बता रहा हूँ सब श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम है ना, ये आप पढ़िए, सारा आपको विश्व का, घर बैठे आपको पूरे विश्व का ज्ञान, विश्व का ज्ञान, आध्यात्मिक जगत का ज्ञान, पाताल लोक का ज्ञान, सारा ज्ञान, और ऐसा ज्ञान जो आपको जन्म मृत्यु के चक्र से निकालकर भगवत धाम ले जा सके, ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त होगा। तो आजकल जो आधुनिक समय में जो मनुष्य समाज है उसके अंदर जो व्यक्ति इंद्रियों का गुलाम है, बड़ा बड़ा, जो ज़्यादा बड़ा गुलाम है, उसको ट्रॉफी मिलती है। तो इंद्रियों का जो गुलाम है वो तो पशु है, वो क्या आत्म साक्षात्कार करेगा। इसलिए भगवान भगवद गीता में क्या बताए, असंयतात्मना ही योगो दुष्प्राप्यैति मे मति। हे अर्जुन, मेरा ये मत है कि जो असंयतात्मना है, जिसकी इंद्रियां संयम में नहीं हैं, उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना संभव नहीं है, क्योंकि वो पशु है, उसकी विवेक हर लिया जाता है। ज्ञान विज्ञान नाशनम, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये सारे जो हमारे हृदय के अंदर शत्रु बैठे हुए हैं, जिससे हमारी इंद्रियां असंयमित हो जाती हैं, जो हमें ये वेग है, वेग, काम, वासनाएं, क्रोध,
लोभ, ये सब वेग हैं जो हमारी इंद्रियों को असंयमित कर देते हैं। हम इनके वशीभूत हो जाते हैं, इन वेगों के। देखिए सबके जीवन इसी प्रकार से है। लोभ, टीवी में देखते हैं, ये देखो, ये खरीदो, हमें लोभ जनित हो जाता है, अरे हमारे पास भी होना चाहिए, हमारे पास भी होना चाहिए, है ना। नया नया वो मॉडल चेंज करते रहते हैं मोबाइल का, कार का। कार ठीक ठाक चल रही है लेकिन अभी नया मॉडल आ गया, इसलिए कार चेंज करनी है ना। तो लोभ है, लोभ। घर में और चाहिए, ऐसा लोभ। काम वासनाएं हैं, काम वासना तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, कि जानवर भी इतने कामुक नहीं हैं जितना आदमी कामुक है, उनको भी हमने पीछे छोड़ दिया है। तो काम करो, ये सब वेग के वशीभूत होकर के हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए कहा गया है भगवद गीता में, ज्ञान विज्ञान नाशनम। जो व्यक्ति इन वेगों के अधीन है उसका ज्ञान विज्ञान खत्म हो जाता है। इसलिए वो क्या, उसके अंदर विचार भी नहीं आएगा कि हमें सोचना है हम सही नहीं, हम मरने वाले हैं, मरने के बाद क्या होगा। आजकल के लोगों से बात करो, अरे भाई तुम जानवर बन जाओगे, बोलो अच्छी बात है, जानवर बन जाएंगे तो, है ना, क्या दिक्कत है इसमें। और अच्छा आराम से फ्री घूमेंगे, कोई बिना पढ़ाई के आराम से सब मैथुन सुख करने को मिलेगा, ऐसा लोग विचार करते हैं। तो इसीलिए इंद्रिय संयमन जरूरी है। तो आप देखिए हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हम कहाँ चले गए आज, कहाँ भगवद गीता में। इसलिए तो लोगों को भगवद गीता समझ में नहीं आती, मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि ये पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया है जीवन के प्रति। क्योंकि ये तो अर्जुन कम से कम मनुष्य समाज में है, और आजकल के लोग तो धीरे धीरे पशुवत ही होते जा रहे हैं सब, तो इसलिए उनको ये अटपटी लगती है ना। तो इंद्रिय संयमन, और इंद्रिय संयमन के लिए ज़रूरी है अभी इंद्रिय संयमन कैसे होगा। इंद्रिय संयमन जब भी बात होती है, इंद्रिय संयमन की कभी कभी बात होती है, ज़्यादा बात तो नहीं होती है। जब भी होती है कुछ लोग करते हैं तो वो सोचते हैं इंद्रिय संयमन मतलब एकांत में चले जाओ, घर बार छोड़ दो, समाज छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, संन्यास ले लो और बस कहीं दूर चले जाओ। आजकल तो वैसे दूर जाना भी संभव नहीं है, आईटी कम्युनिकेशन सब जगह टावर लगा दिए कहाँ है, एकांत संभव नहीं है। लेकिन ऐसा लोग सोचते हैं कि अगर इंद्रिय संयमन करना होगा तो आपको तो बस फिर आप संसार में आप नहीं रह सकते। लेकिन ये जो वर्णन चल रहा है यहाँ पर, इस भ्रांत धारणा, ये बताया ये भी भ्रांत धारणा है। केवल इस प्रकार से इंद्रियों को संयमित मतलब इंद्रियों को हम शिथिल नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। वो इससे 2 श्लोक पहले बताया कि अगर कोई ऐसे ज़बरदस्ती इंद्रियों को शिथिल कर भी ले तो भी उसके मन के अंदर से जो भोग करने की इच्छा है वो समाप्त नहीं होती है। भोग करने की इच्छा तो केवल और केवल उच्चतर स्वाद, इंद्रियों से मिलने वाले स्वाद से भी ज़्यादा उच्चतर स्वाद जो केवल भगवान की सेवा करने से ही प्राप्त होता है, वही प्राप्त करके, उस स्वाद को प्राप्त करके ही केवल हम इंद्रियों से मिलने वाले स्वाद, इंद्रियों से मिलने वाले सुख को छोड़ पाएंगे। तभी वास्तविक इंद्रिय संयमन संभव है। तो सरल शब्दों में कहें तो इंद्रिय संयमन केवल तभी संभव है जब हम इंद्रियों से मिलने वाले जो क्षणिक सुख है उससे कहीं कहीं अच्छा आध्यात्मिक सुख जो भगवान की सेवा से प्राप्त होता है उसको जब हम चखेंगे तभी हम इंद्रिय संयमन कर पाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति भगवान की भक्ति किए बिना केवल अपने कृत्रिम तरीके से योग साधना के बल पर केवल जो यांत्रिक विधि है योग साधना की, उसके माध्यम से केवल यदि कोई व्यक्ति इंद्रिय संयमन करने का प्रयास कर रहा है तो वो बहुत कठिन मार्ग है और उसमें बहुत चांस है कि कहीं ना कहीं वो विफल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं, दुर्वासा मुनि, एक हमारे भागवतम के अंदर वर्णन है एक युग का जिसमें एक बहुत बड़े मुनि थे, दुर्वासा मुनि। बहुत योग सिद्धि थी उनके अंदर, है ना, लेकिन वो अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाए। जबकि दूसरी तरफ अम्बरीश महाराज एक भगवान के भक्त थे, जो राजा थे, है ना, योगी नहीं थे, एक राजा थे, गृहस्थ थे, लेकिन वो पूरी तरह से उनकी इंद्रियां संयम में थीं, क्रोध नहीं था, सब कुछ उनके वश में था। क्यों? क्योंकि वो भगवान के महान भक्त थे। तो भगवान की भक्ति करने से, इसलिए यहाँ इस श्लोक में ये समझाया, ये इस श्लोक का तात्पर्य है, तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत्परः। इन इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना है
वो भी एक प्रयास करना है। अनावश्यक चीज़ों, अनावश्यक जो विषय हैं उनमें इंद्रियों को नहीं डालना है। यानी कि जो हमारे आजकल स्मार्टफोन है वो तो सारा जड़ है उसकी, सारे अनावश्यक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य का हेडक्वार्टर्स ये हमारा स्मार्टफोन है। तो यथासंभव आजकल ये भी नहीं बोल सकते हैं कि स्मार्टफोन छोड़ दीजिए, क्योंकि आजकल तो लोगों का जीवन ही असंभव हो जाएगा उसके बिना, ऐसा हो गया है। जितना दूर रह सकें वो एक चीज़ है, ऐसी अनेक चीज़ें हैं। तो इंद्रियां जो हैं वो भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। भगवान की जो भक्ति है वो केवल बस हम भगवान के बारे में सोचें, ऐसे नहीं होती है। जो भक्ति है वो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में एक मार्गदर्शक गुरु, जो भगवान के कोई महान भक्त हैं, सुदृढ़ भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति में बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, ऐसे एक गुरु के मार्गदर्शन में हमें अनुशीलन करना होता है। अनुशीलन मतलब अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, सबको भगवान की सेवा में नियोजित करना होता है। उससे क्या होता है कि ये हमारी सारी इंद्रियां, मन सब जो है वो शुद्ध हो जाती हैं और अपने आप इंद्रिय संयमन अपने आप हो जाता है। और आप देखिए ये विधि ही आज ये जो हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं इस्कॉन के माध्यम से, यही विधि प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पर अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया है कि उन्होंने मन भगवान के चिंतन में लगा दिया, वचनों को भगवान के गुणगान में लगा दिया, हाथों को भगवान के मंदिर सफाई करने में लगा दिया, पैरों को भगवान के मंदिर तक चलने में लगा दिया, अपने सर को भगवान के चरणों में झुकाने में लगा दिया, अपनी गंध जो नाक है उसको भगवान के चरणों में जो अर्पित पुष्प हैं उसको सूंघने में लगाया, अपनी जिह्वा को भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी दल को का स्वादन करने में लगाया। ऐसे अपनी समग्र इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया। तो यही चीज़ इस्कॉन के अंदर सिखाई जाती है। यही सुबह से उठ के शाम तक हम कैसे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, यही हमें प्रशिक्षण लेना है। इस्कॉन का प्रशिक्षण यानी जो परंपरा में हम आ रहे हैं, ये प्रभुपाद जी, भगवद गीता, ये सब भागवतम की परंपरा, तो उसमें नहीं है कि घर बार छोड़ के चले जाओ। इवन जो सन्यासी भी है, जो इस्कॉन या जो भक्ति मार्ग है उसमें जो सन्यास भी है, वो सन्यास भी क्या होता है उस सन्यास का केंद्रीय भाग है अपने मन, वचन और शरीर को भगवान के सेवा में पूरी तरह नियोजित करना। इस तरह से सार रूप में हर भक्त सन्यासी हो सकता है। जो भी भक्त अपने शब्दों, मन को, शरीर को भगवान की सेवा में पूरी तरह से नियोजित कर पाता है वो सन्यासी। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च। तो आप सब लोग सन्यासी योगी बन सकते हैं। और कैसे कि अपनी सारी इंद्रियों को, अपने मन को, आंतरिक इंद्रिय है मन और बाह्य इंद्रियां, उन सबको भगवान की सेवा में लगाकर, और ये सभी सेवा का प्रशिक्षण ही यहाँ पर होता है। तो कैसे अपने कानों को भगवान के वचनों को सुनने में लगाना, अपनी जीवा को भगवान के गुणगान में लगाना और भगवान का प्रसाद सेवन में लगाना इत्यादि, ये सारा प्रशिक्षण। तो आप देखिए यहाँ क्या होता है, आप लोग आते हैं, श्रवण करते हैं, तो क्या हो रहा है, आपकी श्रवण इंद्रिय को आप भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। और वो इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाने से क्या होता है, सारा जो कल्मश है हमारे हृदय से वो सब स्वच्छ हो जाता है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरथ। भागवतम में ये श्लोक आया है कि प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, कर्ण के रंध्र, कर्ण के जो छेक हैं, रंध्र हैं, प्रविष्ट, उसमें प्रविष्ट होकर के ये जो भगवान की कथा है ना, भगवान का संदेश है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, जब ये कर्ण के रंध्रों से जाता है और स्वानाम भाव सरोरुहम, हमारे हृदय का जो कमल रूपी जो हृदय है उसमें विराजमान होता है ये शब्द। और ये जो शब्द है भगवान की कथा, ये भगवान से अभिन्न है,
इसलिए भगवान कर्णों के माध्यम से हमारे हृदय के अंदर विराजमान हो जाते हैं। और फिर धुनोति शमलम कृष्ण, ये जो कृष्ण है फिर क्या करते हैं, हमारे हृदय में जितनी भी ये गंदगी है, काम वासनाएं हैं, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद मत्सर्य है, ईर्ष्या द्वेष, ये सब को कृष्ण धुनोति सफाया कर देते हैं। कैसे, सरिदस्य यथा शरत, जैसे शरद ऋतु जलाशयों को शुद्ध कर देती है ना। अभी शरद ऋतु आएगी, अभी जो ऋतु है ना, कौन सी ऋतु चल रही है अभी, वर्षा ऋतु चल रही है, ठीक है। वर्षा ऋतु में क्या होता है, सारे जलाशय मिट्टी बुदबुद फेन पंकई गंदगी से, सब मिट्टी से भर जाते हैं, है ना। लेकिन जब शरद ऋतु आएगी तो फिर क्या होगा, आप देखिए धीरे धीरे सारे जलाशय बिल्कुल स्वच्छ हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से भगवान जब हमारे हृदय में आ जाते हैं, ये श्रवण रूपी, जब हम श्रवण करते हैं भक्तों के मुख से निकली हुई भगवत वाणी का जब हम श्रवण करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध है। इसी प्रिंसिपल पे ये पूरा इस्कॉन चल रहा है। आप देखिए इतने सारे लोग भगवान की ये कथा सुन करके उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है ना। ये इस्कॉन में जो ये श्रवण कीर्तन होता है तो इसलिए लोग डरते हैं, अरे भाई तुम ये इस्कॉन में जा रहे हो, इस्कॉन में तो ये लोग सब पता नहीं सब कुछ छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं। बड़ा बदलाव आया था, लोग देखते हैं उस बदलाव को होते हुए, उनके पहनने में बदलाव आया था, उनके सोचने में पूरा दृष्टिकोण, पूरा जगत के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। कई बार लोग डरते हैं तो सब बदल जाते हैं, इसलिए कई बार लोग बोलते हैं ब्रेन वॉश कर देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं लोग। सही बात है, ब्रेन, प्रभुपाद बोलते थे ब्रेन वॉश करने की जरूरत है क्योंकि इतनी सारी गंदगी भरी हुई है। अगर ब्रेन वॉश नहीं करेंगे तो आप तो फिर पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम ऐसे चलता रहेगा। तो इस भौतिक जगत इतना भयावह है तो उसमें तो खूब जबरदस्त धुलाई की जरूरत है। अगर धुलाई नहीं होगी तो फिर कैसे कुछ लाभ होगा, हमारा शुभ कैसे होगा। अगर हमें यहीं सड़े रहना है ना। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, एक मनोरंजन करने के लिए कथा सुनने जाते हैं। भागवत कथा किसे सुनने आते हैं, एक मनोरंजन, धार्मिक मनोरंजन। उससे क्या लाभ होगा, मनोरंजन होगा बस। लेकिन अगर हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, भगवत धाम जाना है, तो ये ऐसे धार्मिक मनोरंजन से काम नहीं चलेगा। पूरा शुद्धि होनी चाहिए हृदय से, अंदर से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर निकलना चाहिए, तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। और निकल करके भगवान के प्रति प्रेम जागृत होना चाहिए। प्रेम मतलब भगवान की सेवा करने की अनंत इच्छा, और केवल भगवान की सेवा करने की इच्छा, इस जगत को भोग करने की इच्छा नहीं, उसे कहते हैं कृष्ण प्रेम। तो उसके लिए क्या जरूरी होगा, उसके लिए ये मार्ग जरूरी होगा। और ये सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ऐसा मत समझिए कि बड़ा दुखदायी है। भगवान की भक्ति सेवा करने में तो वास्तविक आनंद है, सुसुखम। हाँ, भौतिक जगत की चीज़ छोड़ना है, उसमें आपको लगेगा कि दुख होगा, लेकिन उसके बदले आपको जो सुख मिलेगा वो उसकी कोई तुलना ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो इस्कॉन है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जो श्रील प्रभुपाद ने शुरू किया है, ये जन जन में ये प्रशिक्षण देने के लिए कि हम कैसे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, और उससे हमारे हृदय की गंदगी साफ होगी और धीरे धीरे हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। और जब ये प्रेम जागृत होगा तो फिर हम स्थिरता से इंद्रियों का संयमन करते हुए भगवान की सेवा में आगे बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे भगवान के शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। और इसी जीवन में हम अनुभव करेंगे भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को, है ना। भगवान के सच्चे सेवक बन पाएंगे, निस्वार्थ रूप से भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा को प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि जब ये प्राप्त हो गया तो जन्म मृत्यु का चक्र तो अपने आप कट गया, उसके लिए हमें अलग से प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है ना। मुक्तिर मुकुलितांजलि सेवते अस्मात्, एक भक्त की तो जो मुक्ति है वो उसके द्वार पे खड़े होकर अपने आप उसकी सेवा करने को तैयार रहती है, उसको उसके अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। योगी गण पूर्व काल में बड़े हिमालय पे जाकर के और हजारों हजारों साल बड़ी कठिन तपस्या करते थे, तब जाकर के जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलता था। लेकिन एक गंभीर भक्त को बड़ी सरलता से भगवान उसे जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा देते हैं। तो इस तरह से सार रूप में कहें तो ये जो भगवद गीता का विषय है ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है, यदि वो अपने को मनुष्य बोलता है तो उसको भगवद गीता नियमित रूप से पढ़नी चाहिए, है ना। और श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य के द्वारा भगवद गीता को यथारूप और बड़ा सरल बनाया है। तो इसलिए
सबके पास भगवद गीता होनी चाहिए, सबको नियम भगवद गीता पढ़नी चाहिए। उसके बिना जीवन हमारा व्यर्थ जा रहा है, एक एक दिन हम मृत्यु की हम तरफ जा रहे हैं। और फिर भगवद गीता के उपरांत अगला स्टेज है श्रीमद् भागवतम, और उसके बाद में श्री चैतन्य चैतामृता। ये सब पूरा एक कोर्स है, आध्यात्मिक कोर्स। हम इतने अपने बच्चों को पढ़ाई, हम सब ने खुद भी पढ़ाई की है ना, स्कूल में हम पढ़ते हैं 10 साल 15 साल 20 साल, और ठीक है, जो भी उससे पैसा कुछ कमाने के लिए जो भी प्राप्त करते हैं, लेकिन ये जो है ये एक कोर्स है पूरा, है ना, जिससे आपका परम लाभ होगा, परम लाभ होगा। ऐसा कोई और लाभ मिल ही नहीं सकता। यम लब्ध्वा न परम लाभम मन्यते अधिको ततः, जिसको प्राप्त करने के बाद इससे ऊंचा और कोई लाभ नहीं हो सकता, आप इसको समझेंगे। तो इसलिए, और अभी ये पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ है ना, चल रहा है, बहुत शुभ अवसर है। तो आप एक ये वचन लीजिए, अगर आज जो आपने सुना उससे आपको ये समझ में अगर आया, आपको लगा कि यस मनुष्य जीवन दुर्लभ है और हमें ये समय नहीं गंवाना चाहिए, हमें भगवान जिनके साथ हमारा शाश्वत संबंध है, जिनको हम भूल गए हैं, उनके साथ हमें संबंध स्थापित करना ही होगा मरने से पहले। और कब मरेंगे पता नहीं, कभी भी हो सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो उतना हमें भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना है। हमारा संबंध क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्यदास। और ये सब चीज़ संभव कैसे होगी? सत्संग में, साधु संग में, श्रवण कीर्तन इत्यादि जो पूरी भक्ति है उसको संपन्न करने से होगी। और उसका समुचित मार्गदर्शन प्रभुपाद दे रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथों को, प्रभुपाद के ग्रंथ मतलब शास्त्र, प्रभुपाद ने कोई अपने ग्रंथ नहीं बनाए, प्रभुपाद मतलब शास्त्रों को ही प्रभुपाद ने समझाया। तो ये ग्रंथ जरूर अपने घर में पूरा बसाइए और नियमित रूप से उसका अध्ययन कीजिए, हरे कृष्ण मंत्र कीजिए और तीव्रता से, गंभीरता से भक्ति संपन्न कीजिए। इसके साथ हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न अगर किसी का है तो आप पूछ सकते हैं। कोई जिज्ञासा अगर किसी की है तो आप पूछ सकते हैं। इधर आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपने सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए बताया, तो अभी जो गृहस्थ है और ये गृहस्थ अभी भौतिकवादी दुनिया के लोगों के साथ काम कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग पैसों के पाछड़ दौड़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ काम करते हुए जो जीवन निर्वाह के लिए गृहस्थ का वो भी करना जरूरी है। तो उसमें कैसे क्या करना जरूरी है? पैसा कमाना, आर्थिक उपार्जन के लिए काम करना भी जरूरी है भौतिकवादी में। तो ऐसे समय में कैसे गृहस्थ भक्त सभी अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते? गृहस्थ को भगवत सेवा के लिए पैसा कमाना चाहिए। गृहस्थ जीवन का निर्वाह तो उसके अंदर अपने आप हो जाएगा। आप अगर अलग से प्लानिंग करेंगे, मुझे अपने निर्वाह करना है और फिर भक्ति करनी है, तो वहाँ द्वंद्व हो गया। आपने दो अलग अलग कर दिया, फिर दोनों आपस में लड़ेंगे, है ना। भगवत सेवा करूं कि परिवार चलाऊं, भगवत सेवा करूं कि परिवार चलाऊं। लेकिन हमारा जीवन भगवान की सेवा के लिए, गृहस्थ जीवन भगवान की सेवा के लिए। गृहस्थ जीवन क्यों निभाना है? हमें अपना शरीर क्यों टिकाना है? क्योंकि इस शरीर से हम भगवान नाम लेंगे, भगवान के विषय में पढ़ेंगे, प्रचार करेंगे, इसलिए घर चलाना है। गृहस्थ जीवन क्यों होना चाहिए? जिससे पति पत्नी बच्चे भगवत भक्ति करें, इसलिए तो गृहस्थ जीवन है। इसलिए गृहस्थ जीवन मेंटेनेंस हम इस समझ से करें कि ये गृहस्थी जो है ये भगवान की गृहस्थी है, ये मेरी नहीं है। संसार कृष्णेर संसार कर छड़ी अनाचार, कृष्णेर संसार अपना, ये हमारा अलग संसार नहीं है, ये भगवान का ही, ये भगवान का है, ये कुटुंब भगवान का है। इसलिए इसका केंद्र भगवान की सेवा होनी चाहिए। तो पैसा जितना पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए। लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं,
लेकिन हम अगर भक्त हैं तो हमें, अगर हम सुन रहे हैं समझ रहे हैं, तो हमें पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि पैसे का उपयोग शरीर टिकाने के लिए है। इसलिए जितना सरलता से कुछ सामान्य रूप से 5-6 घंटे काम करके जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट होना चाहिए। यद्यपि ये जो आधुनिक जीवन है, जो पूरा पैसा कमाने के लिए पैसे के पीछे पागल हैं लोग, और आप उसी समय में रह रहे हैं, तो इसलिए आपको भी उन्हीं की रफ्तार से दौड़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी यथासंभव प्रयास करना चाहिए, जहाँ हमारे हाथ में है हम आराम से जो मिल जाए उसमें संतुष्ट हों। और अगर सौभाग्य से, अपने आप भाग्य से थोड़ा सा करने पे भी खूब पैसा मिल रहा है, तो उसे खूब भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका पे संचय करें, तो उससे हमारी जो पैसा कमाने के समय भी हमारी जो चेतना है वो भगवत में हो सकती है। अगर हम इस चेतना से पैसा कमा रहे हैं कि पैसा हम भगवान की सेवा के लिए कमा रहे हैं, ये परिवार भी भगवान की सेवा के लिए पाल रहे हैं। अगर हर चीज़ का केंद्र हम भगवान को बनाएंगे, हर चीज़ को हम भगवान से कनेक्ट करेंगे, तो फिर वो कार्य अलग नहीं होगा। और उसके अंदर भी अनावश्यक, अगर हमारी चेतना पूरी तरह से केवल भगवान के लिए कमाने के लिए, तो हम पूरा दिन रात पैसा भी कमा सकते हैं। जैसे कि तिरुमंगे आलवार डाका भी डाले, चोरी भी की है भगवान के लिए, लेकिन सामान्यतः हमारी चेतना उतनी शुद्ध अभी तुरंत नहीं होगी, तो एकदम से हम, तो कम से कम ये सिद्धांत लेके चलें कि जितना सरलता से शरीर का निर्वाह हो जाए उतना करें, और अगर आवश्यकता से अधिक आ रहा है तो उसको भगवान की सेवा में लगाएं। तो इस तरह से हम गृहस्थी चलाएं। ठीक है, और कोई प्रश्न? मैंने प्रश्न पूछा कि उत्तर करो तो क्या माइक का नाम ठीक है, प्रश्न हो જોઈએ થવો જ જોઈએ સાહેબ થવો જ જોઈએ પ્રશ્ન સાહેબ આવ્યો સમજ્યા હોય પ્રશ્ન થવો જ જોઈએ. હરે કૃષ્ણ ભગવાન એક થોડુંક આ જે વિષય છે એ વિષય થોડુંક બહાર છે. सोचिए गुरुत्व બહાર अलग अलग बात। हाँ, तो हम भागवतम के लिए जो जाते हैं प्रचार के लिए, तो लोग ऐसे कहते हैं कि वो इतना सारा पुस्तक कब पढ़ लेंगे, तो हमें ऐसा क्या कहना चाहिए कि जिससे वो भागवतम के जो पढ़ने में जो रुचि आई उसको कैसे उसको। देखिए, मैं अभी हम ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में भी कभी कभी वितरण करते हैं, वहाँ बैठ के सो रहे हैं, लंबी लंबी 10-10 घंटे की जर्नी है, उनको ही बोलते हैं अरे भाई ले लो, तो टाइम नहीं है, मैं कभी पढ़ो ना, यहाँ टाइम है फिर भी नहीं पढ़ते हैं, फिर भी लेते हैं। तो इसलिए बात क्या है, उनको तो बहाना बनाना है। एक्चुअली प्रॉब्लम समय की नहीं है। समय तो कितना सारा, हम आप देखिए ना आजकल तो मोबाइल में हम कितना सारा समय बर्बाद कर रहे हैं। जब मोबाइल नहीं थे तब ट्रांजिस्टर थे, हमेशा से कुछ ना कुछ टाइम वेस्ट करने के तो साधन रहते ही हैं, है ना। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो हम, क्योंकि मनोरंजन चाहिए, टाइम वेस्ट कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो इसलिए हम उनको ही दिखाएं, आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि आप इतना सारा टाइम यहाँ मिल रहा है आपको, आप उसको लगाइए, तो ऐसा बोल सकते हैं। थोड़ा पुश तो करना पड़ता है, आसानी से नहीं मानते हैं लोग। કોવિડમાં બધા પાસે ટાઈમ હતો શું? કોવિડ જે હતો ને જ્યારે કોરોના कोरोना कोरोना हाँ, कोरोना अभिशाप के टाइम थे आशीर्वाद। तो भी वो पढ़ने में रुचि नहीं, वो मोबाइल में सब बस। इसीलिए ये हमारा एक संघर्ष है, धीरे धीरे जैसे जैसे ये, जैसे आप लोग हैं, आप लोग ऐसा एक कीजिए कि आप अपने साथ में जब भी यहाँ आए ना, तो एक अड़ोसी पड़ोसी मित्र संबंधी एक एक को लेके आना यहाँ पर। धीरे धीरे होगा, बैठेंगे, सुनेंगे, प्रसाद लेंगे, है ना, फिर कुछ दिन तक नहीं आएंगे, फिर से याद दिलाइए, चलो आज एक बार चलो, प्रेम से धीरे धीरे लेके आना पड़ेगा। सुनते सुनते उनके अंदर ना ये
हम में सब लोग सब देख रहे हैं ना, ये पहले दिन जब हम आए थे और आज में जब हम, तो कुछ अंतर हो रहा है ना। तो ये पद्धति है, क्योंकि बाहर के जगत में वो सुन रहे हैं ना दूसरी चीज़ें, तो वहाँ पर रुचि बन रही है, तो उसको परिवर्तित करना पड़ेगा। प्रभुपाद बताते हैं भागवतम में इंट्रोडक्शन में कि ये वितरण करने से और इस प्रकार कार्यक्रम करने से, सत्संग करने से, कीर्तन करने से धीरे धीरे लोगों के अंदर इसके लिए रुचि उत्पन्न होगी। वो हमें करना होगा, रुचि उत्पन्न करनी होगी हमें, तो ये प्रयास से रुचि उत्पन्न करनी होगी हमें। ठीक है, और कुछ, और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्णा प्रभु को प्रणाम। हाँ जी। मेरा प्रश्न है कि हम हमारे शास्त्रों में सिखाते हैं कि सबके अंदर परमात्मा के रूप में भगवान निवास करते हैं। तो कोई दुष्ट इंसान होता है, मतलब हमको भी इतनी तकलीफ होती है कि इतना बुरा काम क्यों करता है, तो क्या परमात्मा को उसके अंदर रहते तो कष्ट नहीं होता है? भगवान उसके अंदर रहते हैं तो उसे कष्ट नहीं होता है? ये मतलब इंसान सब बुरा काम करते हैं तो भगवान को कष्ट नहीं होता है। परमात्मा के रूप में उसके अंदर रहना। हाँ, तो भगवान जो हैं वो हम सबके हृदय में रहते हैं। उपद्रष्टानुमंता च, एक जज की तरह से, न्यूट्रल। वो ना दत्ते कसचित पापम न चैव सुकृतम विभु। भगवान ना तो किसी को सही या गलत काम कराते हैं, जीव अपने स्वभाव और अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के दुरुपयोग से सही और गलत कार्य करते हैं। हाँ, भगवान की अपनी इच्छा है कि सब भगवान की शरण में आके भक्ति करें, वो भगवान की अपनी इच्छा है। तो जब कोई व्यक्ति वो करता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अन्यथा भगवान वहाँ एक जज की तरह से बैठे हैं, परमात्मा की तरह से, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भगवान को कभी कोई कष्ट नहीं, इस तरह से कोई कष्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि भगवान आत्माराम है ना। भगवान किसी के कर्मों, किसी के कर्म फल से, है ना, नमाम कर्माणि निम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। भगवान कहते हैं मुझे कोई भी कर्म फल बांधते नहीं हैं। तो दुष्ट कर्म कर रहा है, लेकिन भगवान ये दुखी हैं कि ये जीव मेरा अंश है और मुझे भूल करके इस जगत में पड़ा हुआ है। वो दुख भगवान को है, और इसीलिए भगवान यहाँ आते हैं और प्रचार करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और जो भी इस भौतिक जगत में, वो सबको देख करके दुख है, लेकिन इस तरह से वो दुख नहीं है जैसे एक व्यक्ति को अपने कर्म फल जो आसक्त है इस जगत से, उसे जिस प्रकार का दुख होता है उस प्रकार नहीं है। वो दुख कैसा है, जैसे एक पिता को एक बच्चा जो है पथ भ्रष्ट हो रहा है तो उसको देख करके उसके प्रति चिंता होती है, वैसा दुख है। अन्यथा भगवान कहीं पर भी रहते हैं, किसी के भी भगवान कण कण में रहते हैं, लेकिन भगवान उससे प्रभावित नहीं होते हैं। एतद ईशस्य ईशनम, ये भगवान की मानता है। भगवान किसी परिस्थिति में रह के भी भगवान उससे प्रभावित नहीं होते। हरे कृष्ण। वो भी जैसा माना गया, वो सुना भी गया है कि शास्त्र में वो भी सत्व को रजो को तमो, जैसी सत्यमर पुराण शास्त्र है, वो उसकी संख्या भी ऐसी सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी। तो जैसे कि प्रभु जी देखा जाता है कि सत्वगुणी शास्त्र में जो श्रीमद् महाभारत में आता है, वैसे दूसरे भी पुराण जो सत्वगुणी शास्त्र में आते हैं, जैसे कि पद्म पुराण है, ब्रह्म पुराण है, ये भी सत्वगुणी शास्त्र में आता है ना। प्रभु श्रीमद् भागवतम जो है वो शुद्ध सत्व में आता है, वो शुद्ध सत्व में है। वो परमो निर्मत्सराणाम सताम, वो जो है उसमें तीनों गुणों से परे, वो तो शुद्ध भक्ति पे आश्रित है। एनीवे, उसमें प्रभु जी ब्रह्मवेद पुराण में ऐसा दिखा है कि किसमें? ब्रह्मवेद पुराण, जैसे महाविष्णु है, उनको बोला कि वो राधा रानी और श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में उसमें उनको दिखाया गया। तो वैसे श्रीमद् भागवतम में है कि वो विष्णु भगवान जो है वो कृष्ण भगवान ही है, उनके रूप में, उसमें उनके पुत्र के रूप में दिखाया गया। तो उसके कैसे पुत्र रूप एक तरीके से जो उनसे निकला है, पुत्र का एक जो मूल अर्थ है जो पिता से आते हैं, तो इस तरह से उस दृष्टि से भगवान का एक रूप है। जैसे एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, इवन जो भगवान के बाकी सारे अवतार भी हैं वो सब भी
जो अवतारी हैं व्रज श्री कृष्ण, वो उन सब की सेवा भी करते हैं। जैसे बलराम जी भी हैं, वो सबसे पहले विस्तार हैं भगवान श्री कृष्ण के, लेकिन वो भी भगवान भी हैं स्वयं भी, लेकिन वो भी आनंद अनुभव करते हैं कृष्ण की सेवा करने में। तो इसी प्रकार से महाविष्णु भगवान का एक रूप है, लेकिन फिर भी वो भगवान के दास भी हैं। इस प्रकार से भगवान के पुत्र भी हैं, तो वो एक अलग व्यक्तित्व भी हैं, भगवान के ही विस्तार हैं। हम भी भगवान के एक विस्तार हैं। तो विष्णु तत्व भी भगवान के विस्तार हैं, हम भी भगवान के विस्तार हैं, लेकिन हम जो हैं बहुत विभिन्न अंश कहे जाते हैं। हम भगवान से अलग हैं, है ना, और स्वांश हैं जो भगवान के स्वयं अपने विस्तार हैं। तो वो सब भगवान की कैटेगरी में है, यानी वो सब समस्त एक जैसी शक्ति धारण करने वाले हैं। लेकिन उसके अंतर्गत भी ये आंतरिक विचार है कि एक है अवतारी कृष्ण जो सबके सब स्रोत हैं, बाकी सारे जो हैं उन्हीं के ही वो विस्तार हैं और उनसे शक्ति में अभिन्न हैं। लेकिन भगवान की सेवा में इतना रस है कि वो सारे अवतार भी भगवान की सेवा में आनंद अनुभव करते हैं, वो भी हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं, सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं। तो इस दृष्टि से वो सब पुत्र हैं सेवक की दृष्टि से। और दूसरे को भी शास्त्र में लिखा है एक बार जो ये वैकुंठ धाम में जो जाता है उसको यानी वापस वो खींचता नहीं है वहाँ से। कहाँ जाता है? वैकुंठ धाम में एक बार वैकुंठ धाम में तो वहाँ से खींचता नहीं, उसका पता नहीं होता। लेकिन दूसरे को भी शास्त्र में होना है कि जो ये जय विजय हो इन्हें कैसे भी नष्ट हो गए तो वो प्रभु वो राक्षस में कैसे। जय विजय की बात तो बिल्कुल अलग ही है। जय विजय तो कभी इस भौतिक जगत में पतन नहीं हुआ। जय विजय तो भगवान की लीला के अंतर्गत यहाँ है। जैसे भगवान आते हैं, देखिए पतन किसको बोलेंगे? जब कोई अपनी चेतना से च्युत हो जाए, भगवत चेतना से च्युत हो जाए। अगर भगवान अपनी इच्छा से ड्रामा करने के लिए, यहाँ पर एक लीला करने के लिए अपने साथ अपने संगियों को लेके आते हैं, तो उसको च्युत होना नहीं कहेंगे। वो तो भगवान के एक जैसे डायरेक्टर होता है ड्रामे का, अलग अलग रोल होते हैं सबके, है ना। तो वो तो उसी प्रकार से भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान की सेवा करने के लिए वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो इस प्रकार से जो जय विजय थे, वहाँ पर भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान की लीला के अंतर्गत भाग लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये संभव है कि जीव जो है वो अगर अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करे, क्योंकि हम पहले तो भगवत धाम थे और वहाँ से आए हैं, तो इसलिए इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके ही आए हैं। तो जब यह शास्त्रों में बताया कि जो वैकुंठ धाम जाता है वो कभी वापस नहीं आता है, तो अगर आप देखेंगे तो शास्त्रों में जहाँ पर ये वर्णन चलता है वहाँ पर तुलना हो रही है पुण्य कर्म में और भक्ति में। जैसे पूरी भगवद गीता के अंदर है ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वो धाम मेरा है जहाँ जाने का वापस नहीं आ सकता है। और वहाँ पर उस पूरे संदर्भ में तुलना चल रही है, यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रताः, है ना, तम स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोकों को जाते हैं, स्वर्ग को जाते हैं, और वहाँ जब उनके पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं तो उनको वापस आना पड़ता है। लेकिन जो मेरे धाम को जाता है वो वापस नहीं आता है। अर्थात कर्म फल के कारण हम भगवत धाम नहीं जाते हैं, स्वर्ग हम कर्म फल के कारण जाते हैं, इसलिए कर्म फल खत्म होने से वापस आते हैं। लेकिन भगवत धाम में क्योंकि हम कर्म फल के कारण नहीं जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक समय है गए और एक समय के बाद आना ही पड़ेगा, जैसा कि स्वर्गलोक जाने से। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में यद गत्वा न निवर्तन्ते नहीं। लेकिन अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करना वो अलग बात है। वो तो हम हमेशा, हमारे पास स्वतंत्रता है, कोई ज़बरदस्ती भगवान किसी को वहाँ नहीं रखेंगे। हमको जितना नहीं, हमें तो यहाँ नहीं रहना है, तो फिर वहाँ रहेंगे क्या करेंगे? वहाँ भगवान की अगर हमें सेवा करने की इच्छा नहीं है तो इसलिए वो स्वतंत्रता तो जीव का हमेशा है ना। लेकिन जब हम इस भौतिक जगत में एक बार आते हैं तो फिर दोबारा तब तक नहीं जाते जब तक ये प्रश्न रहता है कि दोबारा गए वापस आने की इच्छा हुई तो। जब तक सारी इच्छाएं भगवान हाँ तो यहीं रहो ना, आप अच्छे से इच्छा करो पूरी। तो यहाँ पर हमें ये प्रश्न इसलिए उठता है कभी कभी यहाँ पर, क्योंकि हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारी इच्छा कुछ और होती है, फिर भी हमारे मन के अंदर कुछ विवशताएँ, ऐसे प्रभाव आते हैं जो विवश करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो विवश करने वाली माया शक्ति नहीं है। लेकिन स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग तो वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे हाथ में है। वो हम निर्णय लें हमें नहीं करना है तो हम नहीं करेंगे, दैट्स ऑल। वो तो हमारी इच्छा है, वो कोई विवशता कोई हमें नहीं कर सकता। तो इसलिए हम जब पूरी तरह संतुष्ट आश्वस्त हो जाएंगे कि हमें भगवान की सेवा ही करनी है तो हम नहीं करेंगे।
दैट्स ऑल। वो तो हमारे हाथ में है, हमें कोई विवश नहीं करेगा। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है, समाप्त करें। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।